A very good o'clock to all the students. Here I am Amisha, ma'am, your physics teacher. Students, today I am here to discuss more about simple harmonic motion. Okay, where I am starting with, let's discuss that this is our particle x which is at mean position. Okay, so if we are displacing this particle from mean position, like I have written here, that I have displaced the particle in positive direction. Definitely if you will just lose it, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो the force will be towards the backward direction, force is negative, right? If you could see the example of a spring, अगर आप spring को देखो, if you will stretch here, आफ्टर डिस्प्लेसिंग अगर आप इसे छोड़ देंगे तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ. सिमिलरली इफ यू आर डिस्प्लेसिंग दिस पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन, दैट इज इफ एक्स इज नेगेटिव देन द फोर्स इज टू द ऑपोजिट ऑफ इट्स डायरेक्शन, राइट? दैट मीन्स एफ इज पॉजिटिव हियर. यहाँ दोनों तरफ आप ये देखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ है, राइट? सो फ्रॉम हियर वी गेट द इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर एन, वेयर माइनस के इज कॉन्स्टेंट, ओके, and x is what? X is measured from mean position and n is the odd number that we are going to take, 1 3 5 7. So if we are putting x is equal to 0, if we are placing x as 0, then definitely f is 0. that means अगर x 0 पर है, x is 0, x में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा? 0. दैट इज द इक्विलिब्रियम और स्टेबल स्टेट. इसे हम क्या मानते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट या स्टेबल स्टेट. ओके, so here SHM, that is simple harmonic motion. What is the space? It is a special case of oscillation, you can say. Now what is oscillation? If we displace the particle from mean position, अगर आप mean position से particle को displace करते हैं, then definitely it will come back towards its mean position. That is the oscillation. Okay, like we have seen in the spring, moreover in simple pendulum also. If you are displacing the particle from its mean position, it will come back to its mean position. That is the oscillation. So SHM is our special case of oscillation. Now if we take the equation of force in oscillation, what equation of force we have discussed right now? F is equals to minus k x to the power 1. I have placed x as 1. Now we can take n as odd numbers na, so f is equal to minus k x to the power 3, f is equal to k minus k x to the power 5. Then from all of the above, the most simplest form, students, is this one, right? That is f is equal to minus k x to the power 1, and hence it is SHM, that is simple harmonic motion. That is the most simplest form of oscillation. So from here you can say that all oscillatory motions are SHM, that is simple harmonic motion. Is it true or not? No, it is not true. All oscillatory motions are not simple harmonic motion, but you can say all simple harmonic motions are your oscillatory motions, right? Do remember that. Now these those oscillatory motions which are in a straight line are also called SHM. Okay, now how they can be in a straight line? अगर आप पेंडुलम का केस डिस्कस करो, अगर बहुत छोटे छोटे वाइब्रेशंस दोगे, छोटे छोटे ऑसिलेशन, तो वो छोटे छोटे ऑसिलेशन एक तरह से इफ यू विल जस्ट जस्टिफाई और जस्ट सी इट, it is a straight line which is forming. Okay, so you can say the oscillatory motions which are in a straight line, you will consider them as SHM. Remember, oscillations of vibrations, or we can say if we give short amplitude, what I have discussed right now, अगर आप short amplitude देंगे to simple pendulum or anything, so that it forms or makes almost a straight line, and hence it is considered to be as SHM. Here also we must have mean position. F at x is equal to 0, that is mean position f is equal to 0, which is an stable equilibrium, right? ये आपका mean position है. यहाँ से अगर आप displace करते हैं object को, that is positive in direction, तो definitely your f is negative to the opposite. यहाँ पर displace करेंगे, छोड़ेंगे, तो f की direction इधर की तरफ होगी, that is positive. Okay, means force is always directed towards the mean position. अगर आप देखोगे, x should always be measured from mean position, where then you can say force is opposite to displacement of particle if displacement is taken from mean position. आप force को तब ऑपोजिट बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट के पार्टिकल के, जब आप उस डिस्प्लेसमेंट को कहाँ से मेजर कर रहे हो? फ्रॉम द मीन पोजीशन. यहाँ से आप मीन पोजीशन से ही तो मेजर कर रहे हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ओके, now students, let us discuss some more thing. Like I have considered here a particle which is from the mean position, और ये दोनों पोजीशन इनकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं. ओके, एक्सट्रीमली कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम. ओके, सो लेट अस कंसिडर दैट पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. माना पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हो आप इधर की तरफ. ओके, पार्टिकल इधर की तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ, तो हियर वेलोसिटी एक्सट्रीम पर तो क्या होगी? 0, कुछ नहीं,
राइट। सिंपल पेंडुलम का केस कंसिडर करोगे तो यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ तक ऑसिलेट होगा, तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर तो क्या है, वेलोसिटी जीरो है। सो हियर वेलोसिटी इज जीरो एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ इसका डायरेक्शन है। अगर फोर्स का डायरेक्शन मीन पोजीशन तक है तो हैंस यू कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन पर ही होगा, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन पर डिस्कस करते हैं कि एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो हियर एज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। जब सारा यहाँ से पूरा पेंडुलम से यहाँ तक आप ऑसिलेट करते ला रहे हो, यहाँ से ऑसिलेट होता हुआ जा रहा है, तो मीन पोजीशन पर आते आते एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। देन यू कैन से कि तब आप ये बता सकते हो कैन पार्टिकल स्टॉप एट मीन पोजीशन, तो क्या पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा मीन पोजीशन पर अगर एक्सेलरेशन जीरो है, और इट्स मूवमेंट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, दिस आई एम आस्किंग। द आंसर विल बी नो। व्हाई? बिकॉज इट्स मूवमेंट कैन नेवर बी डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी पर हमेशा डिपेंड करता है किसका, मूवमेंट, पार्टिकल का। सो एज पार्टिकल थॉट टू स्टॉप एट मीन पोजीशन, पार्टिकल जिस पोजीशन से यहाँ तक आ रहा है, जा रहा है, सोचेगा कि स्टॉप करे, बट क्योंकि उसमें वेलोसिटी गेन हो रही है, मतलब यहाँ से चली थी जीरो थी, यहाँ से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यानी गेन होती हुई जा रही है। तो यहाँ पर गेन की वजह से वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ से पास आउट हो जाएगी, निकल जाएगी, आगे पार्टिकल निकल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में गेन है। ओके, तो यहाँ से मीन पोजीशन से निकल जाएगा एंड हैंस इट बिकॉज इट अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी। सो यहाँ पर वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल की इस मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती है, सबसे मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पर जीरो है, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम है, और यहाँ पर एक्सट्रीम से जाते जाते मीन पोजीशन तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर आके वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है। ओके, मोर ओवर अब आप आगे बढ़ते तो क्या हुआ, एज पार्टिकल मूव फर्दर फोर्स डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, बैकवर्ड, पीछे की तरफ है, यहाँ जा रहा है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन किधर है, बैकवर्ड, पीछे की तरफ है। जहाँ फोर्स की डायरेक्शन है सेम वुड बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। आप देखो टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यहाँ इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यहाँ इधर की तरफ था तो यहाँ की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन इधर लग रही है, पार्टिकल इधर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर होगी। अब यहाँ पर फोर्स बैकवर्ड है तो पार्टिकल मूव कहाँ कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, हैंस वेलोसिटी नाउ डिक्रीजेस, क्योंकि वेलोसिटी अब यहाँ क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है मीन पोजीशन से जाते जाते। एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी एक्सट्रीम पर जाकर के बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ से ऑसिलेट होता हुआ जा रहा है ना, तो यहाँ जाके डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते यहाँ पर आके एक्सट्रीम पर बिल्कुल जीरो हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर रीच करेगा जब एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक्सेलरेशन किसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। सो हियर इफ़ यू कुड सी दैट इक्वेशन ऑफ फोर्स हमारी क्या थी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अभी डिस्कस करी थी, और हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, A इज इक्वल टू F अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट A इज इक्वल टू, A क्या हो जाएगा, F की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए माइनस के एक्स, और यू कैन से माइनस के अपॉन एम डॉट एक्स, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मीन पोजिशन पर यहाँ से अगर पार्टिकल जा रहा है तो x का डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर इधर की तरफ अगर आप देखोगे x कहाँ टुवर्ड्स किधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ आ रहा है, तो x इज पॉजिटिव हियर। सी व्हेन x दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, x यहाँ पर है क्या, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जो मीन पोजीशन से अगर वो पॉजिटिव की तरफ है, ये जो भी मैंने बताया इधर की तरफ है, तो आप क्या करेंगे, देन एक्सेलरेशन विल टेक एज नेगेटिव, एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, नेगेटिव। सिमिलरली जब x यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर रख के देखिए, अगर आपका x पॉजिटिव है तो वैल्यू में नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप x नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ यहाँ पर k बेटा क्या है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम डॉट एक्स। यहाँ पर k क्या है, k इज SHM कॉन्स्टेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्स्टेंट, और m हमारा क्या है, मास ऑफ पार्टिकल दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन SHM, जो SHM में कॉन्स्टेंट रहता है। दैट तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट x पर, है ना। सो k अपॉन एम को अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ दूसरे कॉन्स्टेंट से, तो वो होगा आपका ओमेगा स्क्वायर से करूँगी। अब यहाँ मैंने ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रखोगे वो स्क्वायर कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो आपकी वैल्यू नेगेटिव साइन में ही रहेगी, क्योंकि नेगेटिव साइन भी तो अटेंड करना जरूरी है ना, इसलिए आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कहाँ से आई इक्वेशन, ये यहाँ से पूरी चलती हुई आई। ओके,
तो और यहाँ पर अगर मैं ओमेगा की वैल्यू लूँ तो ओमेगा बराबर अपना क्या है, यहाँ से देखो एक्सेलरेशन, ओमेगा बराबर क्या है अंडर रूट के अपॉन एम, राइट। हमारा ओमेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम। सो व्हेन एक्स इज 0, अगर आपका एक्स क्या है 0 है तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। दिस वी आर डिस्कसिंग ऑफ द मीन पोजीशन। अभी बात किया बेटा मीन पोजीशन पे कि जब आपका एक्स 0 है, जब आपका ए 0 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0, यानी आपका एक्स 0 है, एक्स अभी रुका हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो मीन पोजीशन की बात करिए ना। तो यहाँ पर हमने ये बोला कि व्हेन एक्स इज 0 तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है 0 है मीन पोजीशन पर। डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। बच्चों जब आप मीन पोजीशन से यहाँ की तरफ एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो तो ये डिस्टेंस कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड। यहाँ से मीन पोजीशन से इस इधर एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो तो ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या कहलाएगा एम्पलीट्यूड। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम कहाँ पर, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पर होगा, यहाँ पर इस साइड पर, तो एक्स इज पॉजिटिव ए ईयर, या फिर इधर की तरफ जाएंगे तो एक्स इज नेगेटिव ए, एम्पलीट्यूड है ये ए, तो यहाँ पर ये नेगेटिव ए वी हैव कंसिडर्ड ऑन एक्सट्रीम पोजिशंस। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। एक्स क्या है यहाँ पर एक्सट्रीम पोजिशन तक का डिस्प्लेसमेंट आपका एम्पलीट्यूड, तो वो ए ले लिया यहाँ पर एक्स की जगह, है ना। तो ए एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अगर आप मोड लेंगे इसका तो मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो मोड ऑफ ए इज इक्वल टू, तब नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए। ओके, अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली। वी हैव डिस्कस्ड सबसे पहले इक्वेशन ऑफ फोर्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ए हमारा क्या है फोर्स अपॉन एम, तो उससे हमारा ए क्या निकल आया माइनस के अपॉन एम एक्स। कैसे, एफ की वैल्यू यहाँ पर रख दिया आपने, तो माइनस के एक्स और अपॉन एम। अभी हमने डिस्कस किया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दूसरी बात हमने डिस्कस करी कि अगर आपका x 0 है यानी मीन पोजीशन है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन भी 0 होगा, है ना। अगर आपका a मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, एक्सट्रीम पोजीशंस पर जा करके एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम होगा, एक यहाँ पर और एक वापस मीन से इधर की तरफ आ रहे हो तो यहाँ पर, है ना। इन दो पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका एक्सेलरेशन क्या है मैक्सिमम है, यानी a आपका क्या है माइनस ओमेगा ए, यहाँ पर प्लस ओमेगा ए, है ना। यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन है, तब आपका x क्या है प्लस माइनस a, राइट। जब v आपका क्या है बेटा v 0 है, कब, एक्सट्रीम पोजीशंस पर। हम जानते हैं वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से आप चले थे तो वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी मीन पोजीशन पर आकर के आपकी क्या हो गई थी मैक्स हो गई थी, सबसे ज़्यादा हो गई थी। फिर आप जब इधर से चलते चले गए तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई और फिर लास्ट में एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। तो वेलोसिटी 0 है एट एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी मैक्सिमम कब है अभी बताया एट मीन पोजीशन वेयर एक्स इज 0, जहाँ पर एक्स आपका क्या है 0 है। एक्स आपका मैक्सिमम कब है एक्सट्रीम पोजीशंस पर मैक्सिमम है जब वेलोसिटी 0 है, तब एक्स आपका या तो पॉजिटिव ए है इधर की तरफ और नेगेटिव ए है इधर की तरफ। अंडरस्टूड। नाउ अब हमने देखा कि कुछ प्लॉट हमारे ग्राफ एफ वर्सेस एक्स, हमें ए वर्सेस एक्स, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स, वी वर्सेस एक्स यानी वेलोसिटी वर्सेस एक्स। अब यहाँ पर फोर्स वर्सेस एक्स में जब आपने ग्राफ देखा बच्चों तो आपको सबसे पहले इक्वेशन चाहिए थी। इक्वेशन हमने बना रखी है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स में अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो हमारा क्या है बेटा माइनस साइन लगाए, यानी कि अगर आपने x लिया पॉजिटिव यानी इस डायरेक्शन में बेटा, है ना, x पॉजिटिव लिया तो x अगर पॉजिटिव लोगे तो f की वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि ये x पर ही डिपेंड कर रही है। यानी हमें f के लिए कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, नीचे का क्वाड्रेंट नेगेटिव का है, तो नीचे की एक्सिस पर जब आप आओगे तो यहाँ पर कहीं नेगेटिव है ना। तो माना ये वाला जो आया है पॉइंट ये हमारा है जब x पॉजिटिव है और f नेगेटिव है। उसी तरह अगर मैं ऑपोजिट करूँ x ले लूँ आपका नेगेटिव यानी इधर की तरफ कहीं x ले लूँ और आपका f ले लूँ पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ कहीं पॉजिटिव, तो ये जब आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर कहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ को जब आप ज्वाइन करोगे बेटा जब x 0 है तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पर जब आप ज्वाइन करते जाओगे तो ये एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी कि अगर आप f वर्सेस x का ग्राफ देखोगे तो दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ओके, नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ देखोगे तो अभी हमने इक्वेशन देखी है कि a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ये भी आपको स्ट्रेट लाइन देगा। कैसे, अगर आप x नेगेटिव लेते हो तो नेगेटिव लेने पर आपका ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, अगर आप x पॉजिटिव लेते हो तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अगर आपने x पॉजिटिव ले लिया तो यहाँ पर वैल्यू में तो नेगेटिव साइन लगा है, आपको नीचे आना पड़ेगा a के लिए, ओमेगा a के लिए, तो आप नीचे आकर के देखोगे यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली ऑपोजिट देखोगे तो
यहाँ कहीं मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करोगे बेटा तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। कौन सा? a वर्सेस x। अब हमें क्या लेना है? v वर्सेस x, वेलोसिटी वर्सेस x। तो वो तो कोई हमारी इक्वेशन अभी बन के आई ही नहीं है। उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मेक एन इक्वेशन। नाउ फॉर v वर्सेज x ग्राफ बेटा इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी। वी नो दैट a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और ओमेगा बराबर हम जानते हैं k अपॉन m विच इज कांस्टेंट, है ना, क्योंकि मास भी कांस्टेंट रहता है, k भी कांस्टेंट होता है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या a को मैं लिख सकती हूँ dv बाई dt, है ना, लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी टू द टाइम dv बाई dt, और इसी इक्वेशन को हम dx से ही मल्टीप्लाई करते हैं, dx से ही डिवाइड करते हैं। दिस आई हैव रिटन हियर, सी, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन बाय dx। ओके, तो a इज dv बाई dt इंटू dx अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। लेकिन हमें t वाला टर्म चाहिए ही नहीं, तो t को एक्सक्लूड करने के लिए आप देखो dx बाई dt आपको क्या देता है? v, वेलोसिटी बताता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये v डॉट dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, सिंस dx बाई dt इज इक्वल टू v। नाउ v डॉट dv, अब v और dv को साथ रखिए, dx को उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर x डॉट dx। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों हमारे पास लगेगी लिमिट। लिमिट कैसे लगाएंगे? आप ये देखिए, जब आपका x क्या है? मैक्सिमम है प्लस a, तब आपकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। x हमारा मैक्सिमम कब होगा? एक्सट्रीम पोजीशंस पे, तब वहाँ पर वेलोसिटी हमारी क्या थी? 0 थी। अगर आप पीछे वापस मुड़ के देखोगे तो इधर देखो, आपका x जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर सबसे मैक्सिमम है, प्लस ए और माइनस ए, है ना, ये मैक्सिमम है। कब? एक्सट्रीम पोजीशन पर आप x, तब वहाँ पर वेलोसिटी अपनी क्या थी? 0 थी ना। वेलोसिटी मैक्सिमम तो मीन पोजीशन पर आके हुई, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? 0 है एट एक्सट्रीम पोजीशन। दिस आई हैव प्लेस्ड हियर। सी, आपने क्या लगाया? x बराबर प्लस है, तो वेलोसिटी ले ली 0। अब आप ये देखो, रैंडमली अगर आप कहीं डिस्कस करो कि रैंडम हमारी के दूसरी जो डिस्प्लेसमेंट है, आपका एम्पलीट्यूड है, वो x मान लिया, तो वहाँ पर रैंडम वेलोसिटी भी v मान सकते हैं हम, कुछ भी हो सकती है ना। तो ये हमारी एक लिमिट लग गई। अब क्या? x इज फ्रॉम प्लस a टू x एंड v इज फ्रॉम 0 टू v। इंटीग्रेट कर दिया, v का इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2, 0 टू v, लिमिट लग गई। माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया। x डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 a टू x, इसकी लिमिट हो गई। अब आपने लिमिट प्लेस कर दी, वैल्यू लगा दी इनकी, तो ये तो आपको क्या देगा? v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, दैट इज v स्क्वायर बाई 2 आ गया। यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 और a लगा दिया तो माइनस a स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर, ये 2 कॉमन है, बाहर ले लिया, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ से 2 और 2 ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बची v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी निकल के आ गई। इसको अगर मुझे और मॉडिफाई करना है, स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो v इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ v वर्सेस x ग्राफ जो हम चाह रहे हैं, राइट। अब सी, यहाँ पर हम क्या करेंगे? द ग्राफ ऑफ v वर्सेज x इज क्या होना चाहिए बच्चों? ये आएगा एलिप्स। कैसे आया? अभी सी, वैल्यू हमारी क्या आई? v बराबर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर मैं ये प्लस माइनस कोई भी एक कंसिडर कर लूँ, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हटा लिया स्क्वायर रूट, तो अब यहाँ पर स्क्वायर रूट हटा तो यहाँ स्क्वायर लग गया, है ना। अब v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को यहाँ पर भेज दिया तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ऑन डिवाइडिंग RHS साइड एंड LHS साइड, RHS साइड को और LHS साइड को किससे डिवाइड कर दीजिए? a स्क्वायर से। तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या दिया? 1। ये अगर आप देखो बेटा, तो ये इक्वेशन है हमारी इलिप्स की। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ मैच करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या है? v स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की जगह क्या है? ओमेगा स्क्वायर डॉट a स्क्वायर। इस इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमें पता लगा कि v वर्सेस x जो आपका एक्सप्रेशन है, उसका प्लॉट जब आप करते हो तो हमें क्या मिलता है? एक इलिप्स मिलता है। ओके, ऑन y एक्सिस वी हैव वेलोसिटी, y एक्सिस पर y स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है? v स्क्वायर, यानी वेलोसिटी, और x एक्सिस पर तो x स्क्वायर है ही। सो द प्लॉट विल बी ऑफ इलिप्स। सो इक्वेशन वी कैन राइट एज एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन ओमेगा a का होल स्क्वायर कर लिया इज इक्वल टू 1। ओके,
अब यहाँ पर अगर मैं प्लॉट करूँ ये ग्राफ, तो ये एक इलिप्स कंसिडर किया है ना। अब इस इलिप्स में बच्चों एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, ए स्क्वायर की जगह कैपिटल ए यानी एम्पलीट्यूड, यानी एक्स पहले ज़ीरो माना। जब एक्स ज़ीरो था तो मैक्सिमम आपका जो क्या था, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना था, दैट इज़ प्लस ए ओमेगा, है ना, वाई एक्सिस पर ये कुछ है, दैट इज़ प्लस ए ओमेगा एक्स इक्वल टू 0 पर, है ना। और नीचे देखा तो माइनस ए ओमेगा। जब आप इधर की तरफ गए यानी मैक्सिमम एक्स पर गए, एक्स आपका मैक्सिमम क्या है, प्लस है, तब आपकी वेलोसिटी क्या रह गई, लेकिन 0, नथिंग इज देयर, ऊपर कुछ है ही नहीं, केवल यहीं चल रहा है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0। यहाँ पर देखा x इज इक्वल टू माइनस है, यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या है, 0। ओके, सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो v आपका सबसे मैक्सिमम है, दैट इज प्लस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा, है ना। लेकिन व्हेन x इज मैक्सिमम, जब आपका x मैक्सिमम है, दैट इज एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, सबसे लास्ट में जब x मैक्सिमम है, ये दैट इज प्लस है और माइनस है, यहाँ पर वेलोसिटी हमारी कुछ नहीं है, दैट इज 0। और यू कैन पुट, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कि वैल्यू कैसे निकल आई, तो आप x को 0 को यहाँ पुट करके देखो इस इक्वेशन में बेटा, इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखो। x की जगह 0 स्क्वायर कर दो तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, है ना। ये क्या देगा, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ से v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा ए का होल स्क्वायर। अगर आप v लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ओमेगा, यानी प्लस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा। ये v की वैल्यू आई है कब, जब x आपका क्या है, 0। जब x 0 है तो v प्लस ए ओमेगा और v माइनस ए ओमेगा। Hope so it is clear to you. Do watch the videos, students. Try to go through the chapter by your own itself. Okay, thank you, students.